Hello, students. Uh, our yesterday topic was the breathing and exchange of gases from the unit of human physiology. Yesterday, we have discussed about a few topics related to the respirations and breathing, in which we have discussed about the respiratory system in humans, its mechanism and its regulation, and how the gases exchange by the process of exhaling and the inhaling. Then we have discussed about the anatomy and physiology of the lungs, and how the transport of gases and regulation of respirations and respiratory volume as well. We already have discussed these all subtopics, right? Today, we will start with disorders related to the respiration, in which we will discuss about the asthma, emphysema, and occupational respiratory disorders. Occupational respiratory disorders, few of the other respiratory diseases, right? So we will start with the presentation. I will share my Word file and the PPT in description link. You can check the detailed video, or you can send me the email if you want to get the detailed video of any topic which we already have discussed and which we will coming to discuss, right? So I will start with the disorder of respiratory system. Here you can see how the lungs got infected. Firstly, we get to know about the entire physiology and anatomy of the functioning. We everybody is aware from the functions and the anatomy of the lungs, right? So there are the two ways of get infected the lungs, in which the upper respiratory tract and the lower respiratory tract, right? When they both get, they might be sometimes due to the bacterial and the viral infections, they both can get be infected. That the entire things when happen, the entire infection or inflammation in these lower and upper respiratory tract occur, then that is known as a respiratory infection, right? In a very simple language, जब हमारे ट्रैकिया में, जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया या वायरसेस से, ठीक है, तो वो दो तरीकों से होती है। एक तो अपर होगी, एक होगी लोअर, जहाँ फिर दोनों जगह हो जाएगी, ठीक है। वो एक सीवियर कंडीशंस आ जाती हैं जब लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी आपका जो ट्रैक है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, राइट? अब क्या है, दूसरी क्या चीज है कि इनको दो चीजें इन्फेक्ट करेंगी। हमारे जो एयर पैसेज है जहां से हम ब्रीथ ले रहे हैं, जब वहां पे इन्फेक्शन होगी तो वो किन चीजों से होगी? इनिशियली वी मस्ट टू नो अबाउट विच थिंग दैट इन्फेक्ट आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज योर वायरस, नंबर वन, एंड अनदर इज योर बैक्टीरिया। ये दो ही चीजें हैं जो आपको इन्फेक्ट करेंगी। Either it's the lower respiratory tract or it's a upper respiratory tract, right? So वायरसेस कौन से आएंगे? जो वायरसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे वी मस्ट गेट टू नो ऑन द एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम बेसिस दैट वो कौन से वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे आप अपनी ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर पाते, रेस्पिरेशन आप प्रॉपर नहीं कर पाते, ठीक है, बॉडी को उसमें दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है। सो देयर इज अ राइनो वायरस एंड द प्रेन para influenza virus, right? They're the very important questions. Rhinovirus and the para influenza viruses are the two viruses which generally impact your respiratory tract. तीसरी आ गई फंजाई, वो जब पस सेल्स वगैरह बन जाते हैं वो एक सीवियर कंडीशंस है। we will discuss further in our in lecture. So there are the some organisms which are responsible basically to infect our respiratory tract, right? जिससे नेक्स्ट आ गया हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जर्नली क्या होता है, जब आपको एक, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। इसके हम सिम्टम्स एंड इसका डायग्नोस साइमल्टेनियसली हम पैरेलली हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सबसे पहले बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन गया, ठीक है, आपके वो कहाँ से जाएगा? एयर पैसेज है आपके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा,
डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। आपके वहां पे WBCs या आपके प्लेटलेट्स, वो सारी चीजें क्या करेंगी, वो हम सब डिस्कस करेंगे हमारे कमिंग सेशंस में, कमिंग क्लासेस जब आएंगी, तब हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी पे हम इसका अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। वो डिटेल लेक्चर दूंगी मैं उस पे। सो यहाँ पे हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम शुरू कर देती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम पैथोजन को खुद ही किल करने की कोशिश करता है बॉडी, राइट, विदाउट एनी एंटीबायोटिक और एनी अदर ट्रीटमेंट, ठीक है। जब उसका बस नहीं चलता, तब हम कहीं जाके हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है बॉडी को। अदरवाइज बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस चीज को वो खुद ही किल करने की कोशिश करती है, राइट। सो एक तो होता है डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, जैसे कि आपका पैथोजन गोज इनसाइड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन वो आगे क्वेश्चन आता है कि क्या रीजंस हैं जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता, ठीक है। एक तो होती है नॉर्मल कंडीशंस, जिसमें इंसान रहता है तो वहां पे बॉडी को उस पैथोजेंस को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, वो वही किल हो जाता है थ्रू योर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, राइट। एक होता है जब उसके बैरियर्स आ जाते हैं उसके रास्ते में, ठीक है। जब कोई पैथोजन को किल करना होता है उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा ग्रो करने का मौका मिल जाता है, इन्फ्लेमेशन और फैलाने का मौका मिल जाता है, राइट। वो चीजें कैसे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो रीजन है वो है स्मोकिंग, और वैसे एरिया में जाना जहाँ पे एयर पोल्यूटेड है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है कि जहाँ पे ये मतलब हम एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत जहाँ पोल्यूटेड एरिया में जाना, वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ वहां पे आपका जो डिफेंस बैरियर्स मैकेनिज्म सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, राइट। सो ये तो रीजन हो गया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे कौन काम करने नहीं देता बॉडी को, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई है यहाँ पे अभी। थर्ड चीज इज योर फर्स्ट इन्फेक्शन, जो वेरी कॉमन है, हम सबको कोल्ड होता है, राइट। सो उस कोल्ड का रीजन क्या है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वो एक वायरल पैथोजन है जो आपको कोल्ड करवा रहा है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हो जाती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू मस्ट टू नो द नेम ऑफ द वायरसेस, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव टू गेट द कॉमन कोल्ड, राइट। नंबर वन इज योर राइनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस। अभी अभी रिसेंटली इतने हर्डल्स के साथ कोविड वेव खत्म हुआ है, हर्डल्स को क्रॉस करते हुए इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आई, मास्क वियर करो, ये करो, बट वो इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि वो आपके इतने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं कि वो आपके मास्क के थ्रू भी एंटर कर जाते हैं इन योर एयर ट्रैक्ट, राइट, एयर पैसेज के थ्रू। सो तो ये एक रीजन है कि हम वायरसेस को कंट्रोल करना भी चाहें तो हमें बहुत अपने आप को वैसे कंडीशंस में जाने से रोकना होगा, ठीक है। ये इतने ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं बॉडी में, तो इतनी ज्यादा दिक्कत करते हैं, सो इट्स अ वेरी कॉमन रीजन। सो ये तो कुछ वायरसेस के नाम है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, राइट। नंबर वन, सबसे पहले हमने डिफरेंट लेयर्स याद की थी, कल हमने एनाटमी जब डिस्कस की लंग्स की, तो वहाँ हमने प्लूरल लाइनिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें डिस्कस की थी ना। तो बॉडी में जब एंटर होता है पैथोजन, वो आपका आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो गया, ठीक है। वो नोज की हो सकती है, ठीक है, आपका आइज का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ना रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू स्प्रेड होता है, जो हमारे जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे मैंने बोला था प्लेउरल फ्लूइड, ये फ्लूइड रहता है हमारे, है ना, अंदर ट्रैकिया के अंदर, ये जो होता है, तो वहाँ सिक्रीशंस के थ्रू ये क्या होता है, धीरे धीरे स्प्रेड होने लग जाता है। सो जनरली जो कॉमन कोल्ड है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सबसे पहले तो रेनिटिस आ गया। रेनिटिस क्या है कि आपकी ये नेजल म्यूकोसा है ना, जो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बेसिकली आपके यहाँ पे स्वेल होने लग जाता है, ठीक है। इतना हम कई बार ब्रीथ नहीं नॉर्मल ले पाते, ठीक है, हमें कोल्ड का यही रीजन होता है ना, रनी नोज हो जाता है, रनी आइज हो जाती है, तो ये सारा क्या है, रेनिटिस में आ जाता है। सिनस सिनस
आइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोसा, ये जो है यहाँ पे साइनस म्यूकोसा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड वन थिंग मोर विच यू हैव टू नो, जहां भी वर्ड आ गया ITIS, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी एंड में वर्ड आ गया ITIS, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ठीक है। जहां भी वर्ड आ गया तो वो इन्फ्लेमेशन होगा यहाँ पे, आइटिस जिस पे भी होगा। देन फेरिंगिटिस, इन्फ्लेमेशन फेरिंग्स एंड द थ्रोट, कई बार गला सूज जाता है, ठीक है, इतना कोल्ड होता है कि गला भी सूज गया, नाक भी सूज गया, ठीक है, आईज भी आपकी स्वेल होने दिख गई, ऐसी कंडीशन होती है ना, ये बहुत जानों के साथ होती है। सो इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन कोल्ड, राइट। सो हेडेक रहता है तब, नेजल डिस्चार्ज एंड कंजेशन भी हो जाता है, ठीक है, जहाँ तो नाक बहुत ज्यादा बाहर फ्लूइड आ जाता है, जहाँ फिर बिल्कुल ही आपके चेस्ट पे ब्लॉकेज टाइप हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। अभी ये इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये आपकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, एपिथेलियम मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी आपके ये ट्रैकिया वाली, ट्रैकिया के साथ ये यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स आ गए, ठीक है, ये ट्रैकिया आ गया। इसकी एनाटमी एक बार आप फिर से जाके लास्ट प्रीवियस वीडियो देख लेना, उस पे मैंने एनाटमी बताई हुई है सारी, हमने कल हमने जैसे एनाटमी डिस्कस की थी। तो जब आप कोई एनाटमी लंग्स की देखेंगे तो वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वेयर द एपिथेलियम सेल्स आर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, सिलिएटेड सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सेल्स क्या होते हैं, वो हवा में लहरा रहते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ। सिलिएटेड सेल्स आर बाइंडेड विद द एपिथेलियल सेल्स, बट दे आर द माइक्रोवेलाई, ठीक है, उसका सिलिएटेड मतलब ऊपर ऊपर को ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होता है, राइट। सो वो क्या होता है वहां पे इन्फेक्शन का होना, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ होता है इन्फ्लुएंजा, जर्नली किसके साथ हो रहा है आपको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो रहा है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी पैसेज जहां से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस कर रहे हो, वहां पे क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। सो इसके कॉमन जो है, कॉमन जो सिम्टम्स है वो है हेडेक, फीवर, मसल रैकेज, नेजल डिस्चार्ज, अनप्रोडक्टिव कफ, सार थ्रोट, गले का सूजना, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज होना, ये सारे कॉमन उसके सिम्टम्स हैं। ये बेसिकली हमने क्या बोला कि ये किसके साथ बाइंड करके काम करता है, ये बैक्टीरिया के साथ बाइंड करके काम करता है, ठीक है। और ये समटाइम्स अगर बढ़ जाए, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये आपके इन्फेक्शन को आगे लेके जाएगा, सिर्फ ट्रैक या थ्रॉट्स पे इन्फेक्ट नहीं करेगा, ये लंग्स तक इन्फेक्शन बढ़ जाएगा इफ इट विल नॉट गेट ट्रीटेड, राइट। सो उसे हम बोलेंगे वायरल निमोनिया। इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लुएंजा से आपको वायरल निमोनिया भी हो जाएगा अगर ये ट्रीट नहीं किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अभी ट्रीटमेंट क्या है इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट है कि बेड रेस्ट, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो, अपने आप को वार्म रखो, उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स लो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि हमने कोल्ड भी पढ़ लिया, इन्फ्लुएंजा भी पढ़ लिया, ठीक है। कोल्ड हमारा जो होता है जनरली हमने डिस्कस किया कि हाँ वायरसेस इन्फेक्शन के साथ हो जाता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो जाता है। अभी क्या है कि कोल्ड है, उसमें क्या है कि फीवर बहुत कम रहेगा, बट इन्फ्लुएंजा में फॉर श्योर फीवर आएगा ही आएगा, ठीक है। जो फीवर होता है ना, इसका बेसिक क्या है कि बॉडी एक रिएक्टिंग वे में काम करती है, ठीक है। कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी आपको क्या हो गया, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले फीवर ही आएगा, राइट। सो इसमें जो कोल्ड है इसमें हेडेक रहेगा, ठीक है, बट उस इन्फ्लुएंजा में यूजुअली हेडेक होता ही होता है, ठीक है। सो बॉडी एक्ट बहुत माइल्ड कोल्ड में रहेगा, बट इट फॉर श्योर इन द इन्फ्लुएंजा, वीकनेस ऑब्वियसली, अगर आपको हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि आपको वीकनेस, बॉडी फैटीग फील करेगी, उतना एनर्जेटिक आप नहीं फील करोगे, ठीक है। कॉमन, वेरी कॉमन है कि दोनों में ही नेजल कंजेशन हो सकता है, ठीक है, नेजल कंजेशन वेरी कॉमन है इसमें। उसके बाद सार थ्रॉट, दोनों में ही रहेगा, आपका गला सूजा हुआ दोनों में रहेगा, चाहे आपको इन्फ्लुएंजा हो रखा है चाहे आपको कोल्ड हो रखा है। तो दीज आर सम डिस्कम्फर्ट, क्या होता है बेसिकली, इतने सारे सिम्टम्स निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्वेर, आपको वीकनेस हो रही है, ठीक है, बॉडी एक रह रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, फैटीग हो रहा है, तो ये सब क्या चीजें हैं,
ये ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट करेंगी आपको, ठीक है। सो दोनों में डिस्कम्फर्ट रहेगा। अब क्या है, एज पर योर सिलेबस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एस्थमा। अब एस्थमा क्या होता है, ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है, ठीक है। इसमें तो इसमें तो ना इतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपका एयर ट्रैक्ट का, आप नॉर्मल ब्रीथ कर ही नहीं पाते। वहां पे इतना स्वेलिंग, इतना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि यू कांट ब्रीथ नॉर्मली। सो ये एक चीज है जो आपको लीड्स टू दी लंग फेलियर में तक भी ले सकती है, अगर इफ इट नॉट वेल गेट ट्रीटेड, ठीक है। आपको इतना सफोकेटिंग कर देगा ये, ठीक है। तो एस्थमा बेसिकली इन्फ्लामेशन आपकी एयर ट्रैक्ट में होती है, मसल्स इसकी जो है वो स्टिफ हो जाती हैं आपके एयर पैसेज की, ठीक है, जिसमें आप इनहेल एक्सहेल नॉर्मल नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो गया। नेक्स्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये तो नॉर्मल ब्रोंकाई है, इजीली पैसेज ऑफ एयर, उसका माउथ ओपन है, म्यूकस आपकी जो मेम्ब्रेन है उसका माउथ ओपन है, एयर ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है ना, ये सारा ट्रैकिया के थ्रू जा रहा है, तो उस ट्रैकिया का माउथ ओपन है, बट यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ मसल्स टाइट हो चुकी हैं। पैसेज देख लीजिए कितना रह गया, थोड़ा सा पैसेज है, तो कितना नॉर्मली ब्रीथ कर पाएंगे, दिस यू कैन इजीली सी ऑन योर स्क्रीन दैट there is anatomy, there is a trachea। इसी ट्रैकिया को थोड़ा सा जूम करके इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा सिम्टम्स। अभी सिम्टम्स क्या है, कफिंग रहेगा, बहुत ज्यादा कफिंग रहेगी, ठीक है। आप विस्लिंग साउंड करोगे थोड़ा सा, आप ठीक है विस्लिंग साउंड करोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑब्वियसली, जब टाइटनिंग मसल्स हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई वहां पे, स्वेल हो रखा है, तो आप शॉर्टनेस ना ऑफ ब्रीथ होगा, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी क्योंकि वहां पे मसल्स टाइट हो रखी हैं, तो चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, आपको स्नीजिंग रहेगा, रनी नोज रहेगा, इची एंड इन्फ्लेम्ड आईज रहेंगी। सो ये सारी चीजें एस्थमा पेशेंट्स को देखने में कॉमन मिल जाएंगी, राइट। अभी क्वेश्चन आता है, एस्थमा कैन बी क्योर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड बट नॉट बी क्योर्ड। इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते कि मेडिकेशन के बिना बंदा रह सकता है, बिकॉज ये इतना क्रॉनिकल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी बार हम बाहर निकलने से रुक सकते हैं, या हमें काम करने होते हैं, ठीक है, हमें ट्रैवल करना होता है, तो हम स्मोकी एरिया में समहाउ जाना पड़ेगा, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो वहां पे इस बैक्टीरिया और इस वायरसेस को उतना टाइम मिलेगा कि वो ग्रो करे, ठीक है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे करेगा, तो उस चीज को ट्रिगर होने से बचने के लिए वी नीड टू बी गो ऑन द मेडिकेशन। ट्रू। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस एंड द रेस्क्यू ड्रग्स आती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस में सिर्फ आपका जो इन्फ्लामेशन है और द जो एरिया है जहाँ से एयर पास आउट हो रही है, उस चीज को क्या करेंगे, वहां पे इन्फ्लेमेशन खत्म कर देगा, ठीक है। रेस्क्यू क्या होता है कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, एयरवेज को इम्प्रूव ब्रीदिंग, ठीक है, करने के लिए मेडिकेशंस दो वे से दी जाती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म ड्रग्स होती हैं, दूसरी रेस्क्यू और क्विक रिलीफ ड्रग्स होती हैं एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज योर, यस, नेक्स्ट इज योर, हाँ, इस चीज को कंट्रोल कैसे कर जाए, आप उस एरिया में मत जाओ, ठीक है, कितना टाइम, बट समहाउ ये आपको जाना पड़ेगा एंड यू गेट ट्रिगर अगेन। सो उस चीजों का ध्यान माइंड में रखते हुए आपको मेडिकेशंस पे रहना पड़ेगा फॉर मे बी लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आ जाती है लेरिंगिटिस। लेरिंगिटिस क्या होता है, ये आपके ना वॉइस को बहुत हैवी कर देगा, हॉर्स वॉइस आ जाएगी, ठीक है, और कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी जा सकती है, जब हम बहुत ज्यादा शाउट कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा, ठीक है, येल करते हैं और कहीं इंजॉय किया फंक्शंस पे, ठीक है, या फिर आपने कुछ हाँ किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में आपने लाउड हो गए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी स्वेलिंग इन द लेरिंग्स, आपकी वॉइस, वोकल कोर्ड्स से वोकल कोर्ड्स गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, इरिटेशन होगी वहां वोकल कोर्ड्स पे, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो वोकल कोर्ड्स बहुत ही सॉफ्ट एरिया होते हैं, जिसमें आपका जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे हम बोलेंगे लेरिंगिटिस, राइट। सो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट, देन इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये आपके एयर पैसेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, राइट, ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन, राइट।
ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि आपकी एयर पैसेज है, ठीक है, एयर पैसेज कहाँ होके जा रही है, आपकी वोकल कॉर्ड्स आ गई, देन ये आपका ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के नीचे थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स आ गए। तो जो एयर पैसेज है, ठीक है, पूरे का पूरा एयर पैसेज है, वहां पे इंफ्लामेशन का होना इज नोन एज योर ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है, इमीडिएटली आपको कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, नेजोफेरेंस हो गया, तो ये सारी चीजें लीड करती हैं इन द ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये स्कैंड्रियल, पहले आपको कोई और इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल ही, उसके बाद ये स्कैंड्रियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे आपको ब्रोंकाइटिस होगा, ये आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ ब्रोंकाइटिस वाले मेम्ब्रेन पे, ये है आपका नॉर्मल वेक्यूल, यहाँ पे इजिली एयर पैसेज हो रहा है, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल होगा, बट यहाँ पे यू कैन इजिली सी यू कांट ब्रीथ नॉर्मली, राइट, बिकॉज इट गेट सो इन्फ्लेम्ड। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है ब्रोंकाइटिस के, ठीक है, मैलिस, चिलीनेस, स्लाइट फीवर, बैक एंड मसल्स पेन, साथ थ्रॉट रहेगा, वही जो सबके साथ सिम्टम्स देखने मिलते हैं वैसे ही सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट क्या है, जब भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इधर इट इज अ बैक्टीरियल और वायरल, यू मस्ट बी टेक अ plenty of fluids, take a plenty of fluids, you must be take bed rest, एंड इस फीवर रिड्यूस करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, स्वेलिंग को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अपना आ जाता है निमोनिया, दिस इज द अनदर वेरी सीरियस डिजीज, निमोनिया। निमोनिया किन लोगों को होता है जनरली, मोस्ट रिस्क फॉर निमोनिया कौन से पेशेंट्स हैं, जो एज्ड लोग हो चुके हैं, ठीक है, जिनको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, या फिर पहले प्रीवियसली वो वैसे इन्फेक्शन के साथ गो थ्रू हो चुके हैं, एंड उस वो सेम ट्रिगर हो गए हैं दोबारा से, ठीक है, तो ये थोड़ा क्रॉनिकली इल चीज है, ठीक है। स्मोकर्स जो ज्यादा होते हैं, तो स्मोक ज्यादा करते हैं, उनको निमोनिया होने के चांसेस हैं, एड्स और इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स को निमोनिया होने के चांसेस हैं, पेशेंट्स विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो दे आर द फ्यू, ठीक है, पेशेंट्स और द पर्सन हु कॉट द निमोनिया वेरी क्विकली। अभी निमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर very important microorganisms here, Streptococcus pneumoniae. Always remember the name of the bacteria which is responsible for the pneumonia, that is the Streptococcus pneumoniae, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वायरस आपके लंग्स तक चला जाता है, पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रिगर हो जाते हो आप अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद आपका वायरसेस क्या डायरेक्टली एंटर इनटू योर लंग्स। अभी लंग्स में कल मैंने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है, क्लस्टर ऑफ स्मॉल सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स जो आपके नोड्स पे, ठीक है, लंग्स के जो राइट एंड लेफ्ट लोब्स है ना, वहां पे क्लस्टर ऑफ जो सेल होता है उसे आप एल्वियोलाई बोलते हो। वहां पे ये जब निमोनिया कॉज होता है इस बैक्टीरिया या इस वायरसेस से, तो वो एल्वियोलाई क्या होती हैं, जो स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्स होती हैं, वो पस सेल से कवर हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ द फ्लूइड दे हैव द पस सेल्स, एंड पस सेल्स जब आ जाएंगे, इन्फ्लामेशन तो डैम श्योर होएगी होएगी, उसके बाद क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन हो गई तो पसल्स भी आ गए, तो डिफिकल्टी म्यूकस ब्रीदिंग में होगी या नहीं होगी, वेरी वेरी श्योर की होगी, ठीक है। तो ये निमोनिया पेशेंट्स को दिक्कतें आती हैं। अभी वही चीज, बॉडी में कोई वायरस अटैक किया, बैक्टीरिया अटैक किया, तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी, फीवर, नाइस, फीवर होगा, ब्लू स्किन हो जाएगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग में होगी, इंक्रीज पल्स रहेगी, म्यूकस कफ रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन, ऑब्वियसली आपका, आप मेंटली हेल्दी कैसे हो सकते हो, आपकी बॉडी इनसाइड से हेल्दी नहीं है तो आप मेंटली भी हेल्दी कैसे हो सकते हो, ठीक है। सो
अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर कोई किसी चीज को किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, वो होता है मॉक्सिसिलिन। ये आप एक नाम याद रख सकते हो, ठीक है। अभी तो मार्केट में बहुत एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल, यू कैन बट यू कैन रिमेम्बर दिस one name of the drug, antibiotic drug, which is called the amoxicillin, right? अगर निमोनिया इतना बुरा नहीं है, आपको इतना स्प्रेड उसने इतना हार्म नहीं किया हुआ, देन यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज ऑन द एज अ होम रेमेडीज। ऑरल होम रेमेडीज होती हैं जो, ठीक है, घर पे आप इसे ठीक कर सकते हो। बट इफ इट इज नॉट, यू नो, देयर इज अ कंडीशन, इफ इट इज नॉट दैट मच बैड, ठीक है, आपकी वर्स कंडीशन नहीं है, then only you can go on the oral antibiotics, otherwise you must be go to the visit to the doctor and get treated with the specifically antibiotics, right? And third चीज वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि you must be go on the drink of lot of fluids, ठीक है। कोई भी आप इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो, आपकी बॉडी को फ्लूइड चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपकी जो पैथोजन है, वो जो बैक्टीरिया या वायरस है आपको बॉडी को खा रहा है, ठीक है। यू मस्ट बी किल, उसे डाइल्यूट करने के लिए, उसकी जो टॉक्सिफिकेशन है उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, यू मस्ट बी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट आ गया हमारा जो आपके सिलेबस का सेकंड थर्ड पार्ट है, वो है एम्फिसेमा। अभी एम्फिसेमा भी क्या है, ये आप उसके साथ निमोनिया के साथ रिलेट कर सकते हो, ये भी लंग्स में ही है, ये ट्रैक में नहीं है, ये आपके एयर पैसेज ट्रैक में इन्फेक्शन नहीं है, ये आपके लंग्स में है, विच इज वेरी क्रॉनिक, राइट। सो ये डिसीज जब होता है, ये इस डिजीज आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, लंग्स को पूरी तरह खत्म कर देता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मतलब दोबारा आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते, उस कंडीशन को आप एम्फिसेमा बोलते हो, ठीक है। आपको जब आप इनहेल नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में भी दिक्कत आएगी, राइट। सो दैट कंडीशन इज नोन एज द एम्फिसेमा। अभी एम्फिसेमा कहाँ हो सकता है, किसको हो सकता है, ज्यादातर वो जो सिगरेट स्मोकिंग स्मोकर्स होते हैं ना, उनको एम्फिसेमा एट लास्ट स्टेज होता ही होता है, अल्टीमेटली वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। वी विल डिस्कस इन अवर फर्दर डिटेल, ठीक है। तो वही आपका जो हेरिडिटरी भी हो सकता है, ठीक है, आपको कोई आपके जेनेटिकली कोई आपको डिसऑर्डर था लंग्स का, ठीक है, किसी को, एंड एयर पोल्यूशन इज द अनदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्फिसेमा, ठीक है। उसके बाद एज आ गया, एज फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते सकते हैं। बाकी आ गया कि सिगरेट स्मोकिंग दो तरह के होते हैं, एक्टिव स्मोकर्स होते हैं, पैसिव स्मोकर्स होते हैं। डिस्ट्रॉय जो लंग्स है आपके, लंग्स इन्फेक्शन हो जाती है, होती है एयर पास पैसेज में इन्फेक्शन हो रही है या कैसे भी हो रही है, अगर वो स्मोकर्स एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव पैसिव का मतलब एक तो जो खुद स्मोक कर रहा है, एक दूसरा जो उस के साथ वाले हैं जो नहीं कर रहे, वो पैसिव स्मोकर्स हो गए, अल्टीमेटली वो भी उनमें भी वो जो हार्मफुल फ्यूम्स हैं उनके इनसाइड इट गोज बाय द एयर, राइट। सो इन्फ्लामेशन दोनों में ही होगी, उसमें ज्यादा होगी बट उसमें थोड़ी कम होगी पैसिव में, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन दो तरीकों से ही स्मोकर्स में हो सकती है। सो देयर माइट बी इरिटेशन इन द एयर पैसेज इन योर ट्रैक, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब चीजें रेगुलर डेली लाइफ में आ जाती हैं, रेगुलर लाइफ स्टाइल में आपकी आ जाती हैं, तब जाके आपको ये एम्फिसीमा कंडीशंस लाइक या कैंसर लाइक कंडीशंस या निमोनिया लाइक कंडीशंस को आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो है, ये सी, यू कैन सी इजिली दिस इज द नॉर्मल हेल्दी लंग एंड दिस इज द इन्फेक्टेड लंग, राइट। अभी आ गया नेक्स्ट हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको अगेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन सा है यहाँ पे जो याद रखने की जरूरत है, दैट इज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। दिस, अगर ये टीबी आपका क्योर नहीं हुआ, आपने मेडिकेशन पे नहीं गए, आपने डायग्नोस नहीं किया, ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, then ultimately it leads to damage your lungs, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में कफ रहेगी, ठीक है, यू फील फैटीग। जब टीबी पेशेंट्स को आप देखोगे तो वो नॉर्मल से
जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं उनसे थोड़ा सा ना स्ट्रेच करके ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा खींच के सांस लेने लग जाते हैं, वो उनको कफ रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट रेगुलरली पेशेंट्स को बुलाया जाता है, उसका ये देखो यहाँ लिखा है सिम्टम्स ऑफ टीबी पेशेंट, ये सिकनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, बॉडी वेट लूज होने लग जाएगा, फीवर रहेगा, नाइट स्वेट्स रहेंगे। सो दीज आर द बेसिक कॉमन सिम्टम्स विच हैव वी सीन इन द टीबी पेशेंट्स। दे एक तो चीज होती है ना कि ब्लड सैंपल दिया उसमें टीबी आ गया, बट ये समटाइम्स क्या होता है कि टीबी आपके ब्लड सैंपल्स के थ्रू नहीं आता, तो वहां पे आपका फ्लूइड लिया जाता है, जो लंग से फ्लूइड होता है वो लेके उसका टेस्ट किया जाता है, देन डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। सो ये टीबी पेशेंट्स के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया था जब निमोनिया डिस्कस कर रहे थे, तो लंग कैंसर भी सेम चीज है, जब इतनी इन्फेक्शन या वायरल या बैक्टीरिया के थ्रू हुई हुई इन्फेक्शन को ट्रीटेड नहीं किया जाता, तो वो स्लो एंड स्टेडी आपके कंप्लीटली लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। लंग कैंसर ये एक मेन रीजन है कि लंग कैंसर हो जाता है, स्मोकर्स को हो जाता है, स्मोकिंग करने वालों को हो जाता है, ठीक है, सेकेंड हैंड स्मोकर्स को हो जाता है, जो नॉन स्मोकर केसेस हैं वो इन्होंने कुछ रेशो निकाल के दी हुई है, तो ज्यादातर ये कैंसर ऐसे स्प्रेड होता है। तो इसके जो कॉमन रीजंस हैं, जो सिम्टम्स हम देखते हैं, दीज आर द फैटी कफ रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ रहेगा, चेस्ट पेन, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स, भूख नहीं लग रही, ठीक है, कफिंग विद फाइलम, आपको बलगम की खांसी आ रही है, ठीक है, तो वी मस्ट बी गो विजिट टू द डॉक्टर एंड always we get sample and get treated after the diagnosis, ठीक है। तो we must take care of these things. ओके, सो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्यू हमारे जो डिस्कस किए हैं डिजीजेस थे, डिसऑर्डर्स थे, जो रेस्पिरेटरी स्पेसिफिकली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमने इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शनिंग लंग्स की और रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, तो आप फर्स्ट वीडियो देखना, ये हमारा सेकंड टॉपिक था जो हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिस्कस किया। If you want to get a more detailed video, you must be watch the description link, and you also uh, can have a call if we mention the contact number below description box, right? So you go with the rest of the applications. I mention everything in the description box, right? So thank you.